रजिस्ट्रेशन का उपयोग कर कांगसा के कैनाल पार इलाके में चिकित्सा करने के आरोपी देवाशीष पोड़े को कांगसा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में पेश किया। आरोपी कोलकाता के गड़िया का निवासी है। देवाशीष पोड़े के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कांगसा थाने में कुछ माह पहले शिकायत दर्ज कराई थी। विगत जून में कांगसा पुलिस व ब्लॉक प्रशासन ने आरोपी के चेंबर में जाकर जाँच पड़ताल की थी। तब स्वास्थ्य विभाग की ओर से चेंबर को बंद रखने का निर्देश दिया गया था। आरोपी को पानागढ़ बाजार बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। कांगसा थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। বলছি আপনি কিসের ডাক্তার? হ্যাঁ ওরকম আপনি কি স্পেশালিস্ট কিসের ডাক্তার আছেন? আপনি কিছু বলুন। আপনি অ্যারেস্ট হয়েছেন কেন? আপনি কিসের ডাক্তার আছেন এবং অ্যারেস্ট হয়েছেন কেন একটু বলুন বাবু। আপনি কিসের ডাক্তার একটু বলবেন? दुर्गापुर से निमायदास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बड़ा बाजार दुर्गा उत्सव पूजा कमेटी के पूजा मंडल का उद्घाटन बुधवार की शाम को दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर विधायक तापस बैनर्जी एवं एमआईसी दिव्येंदु भगत ने किया। उल्लेखनीय है कि बड़ा बाजार पूजा कमेटी के इस वर्ष 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर और भी भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। पूजा कमेटी के सचिव सिद्धार्थ लाहा, अध्यक्ष अमित कुमार लाहा ने मुख्य रूप से कार्यक्रम का संचालन किया एवं कमेटी के सदस्य रवि दत्ता, तापस लाल सहित कमेटी के अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। তখন মনের নিশ্চয়ই মনটা একটু হু করে ওঠে যে মা চলে যাচ্ছে। তো মায়েরা যখন মাকে বরণ করে একদম নিজের মেয়েকে যখন বরণ করে, এখন তো কেউ করেন না, আমি জানি না ভাই, ফেসবুক টেসবুক এত চলছে। আগে সিঁদুর আলতা পরানো হতো, মায়ের সিঁদুর দেওয়া হতো, শাখায় সিঁদুর দেওয়া হতো। সেই যে অনুভব, সেই অনুভবটা কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমরা দুটো মায়ের সঙ্গে করতে পারি। তাই আমরা আর কোনো পুজোতে আর কোনো অনুষ্ঠানে আমরা বাঙালিরা এরকম করে দিন নিতে শুরু করি না, যাবার কবে মা আসবে। জল আমি দিলাম, আমি তাকে চিনি না, আমি তাকে জানি না, তার কোনো গোত্র নেই, যার কোনো কুল নেই, তাকেও কিন্তু আমি জল দিলাম, তার অর্থ যেন মুক্তি হয়। আমরা সেই ধর্মের ধারক এবং বাজেট খুব সব দয়া করে করবেন না। সারা বছর আপনাদের মুখে পেয়ে তাকিয়ে সে বাঁকুড়া পুরুলিয়া তো বসে থাকে যে যাবো বাবুদের ওখানে পুজোতে। সৌভাগ্যবান যে মায়ের যে পুজোর যে প্রধানত যে উদ্বোধন, সেই উদ্বোধন আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। দেখুন, মায়ের তো উদ্বোধন হয় না, মা তো চমকের উদ্বোধন করে না, কিন্তু একটা আমাদের প্রথা চলে আসে, তার পুজোর শুরুতে একটু ভালো ভালো হয়। তো দেবী পক্ষ আগে ষষ্ঠী সপ্তম পঞ্চমী থেকে হোমকে এখানে নিয়ে আসতে, তাই দেবী পক্ষের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আমরা পিতৃপক্ষ 15 দিন পেরিয়ে এলাম, মহালয়া থেকে দেবী পক্ষ শুরু হয়েছে এবং দেবী পক্ষের সূচনাকালে বিভিন্ন জায়গায় মায়ের উন্মোচন হচ্ছে। শাস্ত্র মতে, পুরাণ মতে আমরা অনেকেই জানি যে পার্বতী কন্যা মর্তে এসেছিল পুজো নেওয়ার জন্য। দেখবেন একমাত্র
এই দুর্গাপুজোর সঙ্গে আপামর বাঙালি নিজেরা রিলেট করতে পারে, সে ধনী হোক, দরিদ্র হোক, উচ্চ বর্ণের হোক, নিম্ন বর্ণের হোক। যেমন আপনার মেয়ে যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে আপনার কাছে আসে, যে আনন্দ আপনি উপভোগ করেন, সেই একইভাবে দেবী যখন আসে, আমরা সেই একইভাবে সে আসলে উপভোগ করি। আবার সেই একইভাবে আপনার মেয়ে যখন বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি যায়, তখন যে আপনার কষ্টটা হয়, মুখের যে মোচড়টা হয়, বিচার থেকে দেখবেন প্রত্যেকে, আবার বৃদ্ধ বনিতা আমরা কিন্তু অনুভব করি। স্বাস্থ্যকর যারা, তারা কিন্তু সমাজের কাউকে অচ্ছুত রাখেন না, কাউকে বাধ্য রাখেন এই দুর্গাপুজো দেখতে পারেন। দুর্গাপুজোর চালচিত্র যদি আপনি দেখেন, এখানে নেই, পুরোনো চালচিত্র যদি দেখেন, দেখবেন সমস্ত জীব বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের দুর্গাপুজো হয়েছে। তার মানে ধরতির পৃথিবীতে যত পশু পক্ষী আছে সবাইকে নিয়ে আমরা বাঁচি, এই একটা নিদর্শন থাকে। দুর্গাপুজোর প্রথম মাটি কোথেকে আসবে? শাস্ত্রে কি বলছে? প্রথম মাটি যারা সমাজের প্রাপ্ত, যারা সমাজের বাইরে যাদের বাড়ি, সমাজ যাদের স্বীকার করে না, সেই প্রতিটা পল্লী থেকে তার মাটি আসবে, সেই মাটি নিয়ে মায়ের পুজো শুরু হবে। পদ্মফুল কে থেকে আনবেন? কোন পৈতৃক পণ্ডিত, তার অধিকার নেই। অন্তজ পরিবারের যে লোক, সে আনবে আপনার পদ্মফুল, তার পদ্মফুলে মার পুজোটা হবে। কাঠ ছুতো কাঠের কাজ করবো অন্তজের লোকেরা। তার মানে সবারই সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সবারই সম্মিলিত অন্তরের সত্যাতে মা দুর্গা আবির্ভূত হন, মা দুর্গা পূজিত হন। রবীন্দ্র ওই গানটা আমরা মেলাতে পারি যে মা অভিষেকে শৈশবতলা মঙ্গল ঘয় নিয়ে পড়া, সবার স্পর্শে পবিত্র হওয়ার চিত্র। এই ভারতের মহামানবের স্বরূপে সবার স্পর্শে যদি এই পবিত্র না হয়, তাহলে কিন্তু মা পূজিত হন না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। सामाजिक संस्था प्रयास फाउंडेशन की ओर से दुर्गा पूजा के मद्देनजर निरंतर वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीते 21 सितंबर से रानीगंज के अलग अलग जगहों पर जरूरतमंद महिलाओं के बीच जाकर साड़ी बांटने का काम किया जा रहा था। इसी प्रोग्राम के तहत बुधवार को रानीगंज स्थित स्कूल मोड़ में लगभग 160 जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में रानीगंज के अनेक समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद ने प्रयास संस्था के द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की और संस्था को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इनके अलावा रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रोहित खैतान, रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी श्री चित्तातोष मंडल, अनंता रेसिडेंसी के डायरेक्टर इंद्रजीत दे, इनके अलावा समाज सेवी आशा टोडानी, बलजीत सिंह बग्गा एवं प्रयास संस्था के सभी सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर संस्था के संस्थापक पिंटू गुप्ता ने कहा कि हर साल उनकी संस्था दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ियां वितरित करती है। आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। जी, आज का ये प्रोग्राम हम लोग दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। हर साल हमारी संस्था दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार ज़रूरतमंद महिलाओं को दुर्गा पूजा में भेंट स्वरूप साड़ियाँ वितरण करती है। उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए इस साल भी हम लोगों ने 21 तारीख से दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर साड़ियों का वितरण करना शुरू किया है और यही सिलसिले आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग स्कूल मोड़ में साड़ी का वितरण कर रहे हैं। आज आप लोगों ने कितने साड़ियों का वितरण किया? जी, आज हम लोग यहाँ स्कूल मोड़ में लगभग 165 के आसपास साड़ियों का वितरण किया है। अब तक आप लोगों ने कितने साड़ियों का वितरण किया और कहाँ कहाँ किया? जी, अब तक हम लोग आज के साड़ियों को अगर पूरा मिला लिया जाए तो लगभग 930 से 940 साड़ियों का वितरण हम लोगों ने कर दिया है। ये 21 तारीख से, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोग्राम हम लोग का शुरू हुआ था, तो रानीगंज के अलग अलग एरियाज़ में जाके हम लोगों ने वहाँ के जो ज़रूरतमंद महिलाएं थी उनको साड़ी दिया है। जैसे हम लोगों ने मंगलपुर, हिल बस्ती, कुमरपाड़ा, बावड़ीपाड़ा, मोचीपाड़ा, इसके अलावा राजपाड़ा और आज स्कूल मोड़ में दे रहे हैं। और लोगों की इस तरीका के डिमांड है और मेंबर से जो हम लोग को फीडबैक मिल रहा है, शायद हम लोग और 1-2 दिन इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद आप लोगों का अगला कोई प्रोग्राम? जी, इसके बाद हम लोग दुर्गा पूजा के बाद
जैसा कि देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके लेकर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग स्कूल जब ओपन हो जाएंगे पूजा के बाद तो स्टूडेंट लोग के बीच जाकर उन लोग को साइबर क्राइम के ऊपर जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने एक फंड रेज प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग कुछ हैंडीकेप जो दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए कुछ हम लोग अपना फंड इकट्ठा करेंगे और उनको आर्थिक रूप से सहायता देने का काम करेंगे। तो सर आपका परिचय? जी, मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता है, मैं इस संस्था का संस्थापक हूँ और ये सब हमारे संस्था के सदस्य हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। इंटक ने बोनस की मांग को लेकर खून से हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए डीएसपी गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस साल करीब 16,000 करोड़ रुपए की कमाई के बावजूद सरकारी दुर्गापुर स्टील प्लांट ने पूजा से पहले स्थायी कर्मचारियों को अभी तक बोनस नहीं दिया है। इसी मांग पर मंगलवार से सभी स्थायी मजदूर संगठनों ने दुर्गापुर स्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट गेट के बाहर एक साथ आंदोलन शुरू किया, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं निकलने के कारण आंदोलन जारी रहा। बुधवार की सुबह वहीं स्थायी कर्मचारी दुर्गापुर स्टील प्लांट के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करते दिखे। इंटक ने ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है। इंटक समर्थकों ने अपने खून से इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंटक के नेता राणा सरकार ने कहा कि स्टील ने इस साल 16,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। अधिकारियों को इस पैसे का एक हिस्सा तो दिया था, लेकिन श्रमिकों को कुछ नहीं दिया गया, इसीलिए हम सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट के इतिहास में पहली बार पूजा से पहले बोनस नहीं दिया गया है। सेल के कारखाने में करीब 50,000 से अधिक कार्यरत हैं। दुर्गोत्सव बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इस बार इन 50,000 श्रमिकों को और उनके परिवार को दुर्गा पूजा पर खुशी के बजाय मायूस रहने की क्यों दे जा रही है। दुर्गोत्सव बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इस बार इन 50,000 श्रमिकों और उनके परिवार को दुर्गा पूजा में खुशी के बजाय मायूसी मिल रही है। আইনটিউসি রাস্তায় নামে যখন দেওয়ালে পিঠ থেকে যায়, সেল এবার 16,000 কোটি টাকা প্রফিট করেছে। এক্সিকিউটিভদের লোয়ার মোস্ট এক্সিকিউটিভদের 70,000 টাকা পিআরপি হচ্ছে। আমরা প্রফিটের শেয়ার চেয়েছে, ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে বারবার পদাঘাত করছেন, প্রত্যাখ্যান, তাই বাধ্য হয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছি। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা ইউনেস্কো স্বীকৃত। দুর্গাপুজোর আগে আজও প্রাপ্য বোনাসের টাকা আমাদের কাছে ঢোকেনি। আমরা আমাদের দাবি, দিল্লিতে মিটিং হচ্ছে, আমরা সর্বোচ্চ আমাদের সবচেয়ে কম যে জায়গায় আমরা সেটেলমেন্ট করতে পারি সেটা জানিয়েছি আমরা ম্যানেজমেন্টকে। তারপরও ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে পদাঘাত করছে, যেটা মানাচ্ছে না। আমরা এই যে রক্ত সাক্ষ্য দিয়ে করছে, যদি এটা না মানেন তখন পরবর্তীকালে কি আন্দোলনে যাবেন? আমরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন মিলে লড়াই করছে। আমাদের সর্বভারতীয় নেতা রেডডিজির সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা, রেডডিজির নেতৃত্বে শ্রমিকরা সবাই মিলে বসবেন, বসে যে সিদ্ধান্ত হবে সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে রাস্তায় নামবো। এটা কি ইতিহাসে প্রথমবার হচ্ছে যেটা যে বোনাস হলো না? এটা প্রথমবার হচ্ছে নয়, ম্যানেজমেন্ট বারবার করে চেষ্টা করেন। আমরা বারবার করে ম্যানেজমেন্টের এই অভিপ্সাকে পূরণ করতে দিই না, আমরা লড়াই করে জয় ছিনিয়ে আনি। এবারে আমরা পুজোর আগে লড়াই জিততে পারলাম না, এর জন্য ম্যানেজমেন্টের প্রচণ্ডভাবে শ্রমবিরোধী নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের তেরা দায়ী। আমি রানা সরকার, হিন্দুস্তান স্টিল ওয়ার্কার্स यूनियन जॉइंट सेक्रेटरी कन्वेनर। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में दुर्गा उत्सव को लेकर पंडालों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं दुर्गापुर से बड़े बजट वाले पूजा पंडालों का उद्घाटन मंगलवार की शाम राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल तरीके से किया। इस दौरान शहर के फूलजोड़, गोपाल मार्ट, दुर्गोजोला सहित कई पंडालों का उद्घाटन किया गया। तैयारियां चरम पर है। रविवार महालया के दिन बेना चत्ती के अग्रणी सांस्कृतिक परिषद का पूजा पंडाल का उद्घाटन राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल तरीके से किया। मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल उद्घाटन को लेकर शहरवासियों में उत्साह चरम पर है। पंडाल में उद्घाटन देखने हेतु राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार, जिला शासक एस अरुण प्रसाद, SBFTC के चेयरमैन सुभाष मंडल, महकमा शासक सौरभ चैटर्जी, DCP ईस्ट अभिषेक गुप्ता, निगम के प्रशासक श्रीमती आनंदिता मुखर्जी समेत कई जाने माने लोग मौजूद थे। माननीय ममता बंदोपाध्याय তিনি সমস্ত বাংলায় জুড়ে তিনি যে দুর্গা প্রতিমার যে উৎসব উদ্বোধন করছেন
ভার্চুয়ালি সেই ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মধ্যে গত বছরও আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছিল। গত বছরও আমাদের ভার্চুয়ালি দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বছরও তিনি দুর্গাপুর যুবমহল অর্থাৎ গোপাল মাঠের যুবমহল, এই যুবমহলকে এই ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মধ্যে তিনি জায়গা করে দিয়েছেন। তার জন্যে তাকে আমরা কোটি কোটি প্রণাম জানাচ্ছি আমাদের গোপাল মাঠ যুবমহলের পক্ষ থেকে, এবং তার কাছে আমরা আবেদন রাখছি তিনি যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গকে নতুন একটা দিক নির্দেশ করেছেন এবং উন্নয়নের রথকে যেভাবে ত্বরান্বিত করেছেন, এবং তিনি যেভাবে বাংলার সাথে সাথে সারা ভারতবর্ষের মানুষের সমস্ত ধর্মের মানুষকে নিয়ে যেভাবে তিনি এগিয়ে চলেছেন, আমরা মায়ের কাছে কামনা করছি, প্রার্থনা করছি যে আমাদের নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি দীর্ঘজীবী হন এবং আগামী দিনে তিনি ভারতবর্ষকে পরিচালনা করুক সমস্ত ধর্মের মানুষকে নিয়ে। এইটুকুই আমরা গোপাল মাঠ যুবমহলের পক্ষ থেকে সমস্ত সদস্যরা আমরা এইটুকুই বলতে চাই। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पश्चिम बंगाल कुल्टी विधानसभा इलाके के तृणमूल नेता अख्तर हुसैन ने इलाके के ही एक दबंग व्यक्ति शकील कुरैशी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने अपने आरोप में ये कहा है कि आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 65 के काउंसिलर व उनके ठेकेदार मीना राय को इलाके के दबंग व्यक्ति शकील कुरैशी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड संख्या 65 के विभिन्न इलाकों में 45 लाख की लागत से पाइपलाइन का कार्य किया गया। कार्य करते समय इलाके के गलियों में 12 फीट के बैंड ढलाई सड़क पाइपलाइन बिछाने के कारण जगह जगह टूट गया है। जिन ढलाई सड़कों को पुनः ढलाई करने का भी ठेकेदारी उनकी टेंडर में ये आदेश दिया गया था, पर सड़क को ढलाई करने की वजह सड़क को ठेकेदार द्वारा चिपिंग कर दिया जा रहा है, जिसको लेकर इलाके के नाराज लोग पहले इलाके के काउंसिलर के पास गए, पर काउंसिलर द्वारा उनके द्वारा दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में इलाके के तृणमूल नेता अख्तर हुसैन के पास गए, जहां तृणमूल नेता अख्तर हुसैन इलाके के लोग द्वारा दिए गए शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इलाके के हालात के बारे में जानकारी दी। वहीं तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर मामला आसनसोल नगर निगम के मेयर व नगम कमिश्नर के मामला तक पहुंच गया है। वहीं इस मामले को लेकर तृणमूल नेता अपनी गंभीरता को दिखाते हुए कहा कि इलाके के दबंग व्यक्ति शकील कुरैशी रिमोट कंट्रोल से इलाके के पार्षद और उनके ठेकेदार को चला रहे हैं। यह कारण है कि उनकी सह में रहकर वह रेस्टोरेशन का कार्य में लापरवाही कर रहे हैं, और जब उनकी लापरवाही को इलाके की जनता गिन रही है तो वो इलाके की जनता को भी गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। तृणमूल नेता ने इलाके में हो रही लापरवाही के खिलाफ जल्द से जल्द निगम प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाने की मांग भी की। वार्ड नंबर 65 में जो प्रॉब्लम है, वार्ड नंबर 65 में 1,20,000 स्क्वायर फीट जो है ना काम हो रहा है, रेस्टोरेशन का काम जो है, रेस्टोरेशन का काम जो पाइपलाइन बिछा है वो काम जो होगा रेस्टोरेशन का 1,20,000 स्क्वायर फीट काम है। ये लोग क्या किया है, यहाँ पे काउंसिलर को जो रिमोट कंट्रोल से चला रहा है शकील कुरैशी, वो शकील कुरैशी जो मीरा राय है कॉन्ट्रैक्टर, उससे कॉन्टैक्ट कर लिया है कि आपको काम नहीं करना है, आपको काम नहीं करना है, इसी तरह से आपको बिल उठवा देगा, हम लोग सही करवा के काउंसलर से, तो उसके बाद जो करना हो कीजिएगा। तो 40 लाख रुपये में कॉन्टैक्ट किया है शकील कुरैशी। ये 40 लाख जो रुपए की लागत से जो काम है वार्ड नंबर में किस किस गली किस किस रोड का काम का निर्माण? ये है हसनपुरा से लेके 6 नंबर गेट तक जो है रोड है ये, उसके बाद जो है मजिदिया पार्क से लेके स्टार चैम्बर तक रोड है, उसके बाद जो है डुमरैया मोहल्ला से लेके सरस्वती मंदिर केंदुआ बाजार होते हुए एकदम जाकर केंदुआ बाजार मोड़ में निकलता है आपका सलूजा मार्केट के पास। उसके बाद रहीमपुरा टोटल चल जाइए, फरीदिया मस्जिद का रास्ता है, उसके बाद रसीदिया मस्जिद का टोटल रास्ता है, उसके बाद जो है आपका जो बेकरी जो है, बेकरी का जो रास्ता है कसाई दुकान की तरफ टोटल रास्ता है उधर, टोटल रास्ता उधर होगा 1,20,000 स्क्वायर फीट। सब्जी मोहल्ला से चले जाइए आप रहीमपुरा, सब्जी मोहल्ला से रहीमपुरा जाने के बाद आप हिंदी तालाब भेला का चल जाइए, उधर से चल जाइए आप जाके मिला
भगीरथ गर्ल्स हाई स्कूल के पास तक। दादा तो ये जो काम हो रहा है ये अभी किस टाइप का काम किया जा रहा है यहाँ पर? तो अभी देखा गया है जो है मुंह देख करके काम हो रहा है। जो आदमी विरोध कर रहा है उसका काम जो है पूरा ढलाई हो जा रहा है, और जो आदमी कुछ नहीं बोल रहा है उसका 1 इंच 1 फीट काट करके उसको जो है ईटा बिछा करके चिपिंग कर दे। मतलब जहाँ से पहले पाइप कनेक्शन किया पानी का वहाँ पर रिपेयरिंग कर दिया जा रहा है। खाली रिपेयरिंग वहाँ पे कर दे रहा है और कुछ नहीं, जबकि उसको पूरा ढलाई करना है। इसमें ऑलरेडी मेरे पास ऑर्डर है इसका कि 3 फीट का जो गली है, 3 से 4 फीट का जो गली है वो 3 इंची करके ढलाई होगा, और जितना चौड़ा रोड है 8 फीट से 12 फीट का रोड है या 1 फीट से लेकर जो 14 फीट का रोड है वो सब 4 इंची ढलाई है। लेकिन ये सब यहाँ पे नहीं है दादा। तो इसमें इसके लेकर नगर निगम का अधिकारी लोग को आप लोग नगर निगम का अधिकारी को हम लोग जनाए हैं, वहाँ सेक्रेटरी को जना दिए हैं, हम लोग विधान भवन को जना दिए, जो मेयर है उनको जनाए हैं। वो बोले हैं कि आप लिखित कंप्लेन कीजिए और उसके बाद जो है आप इसको जो है मीडिया में दीजिए, इसको सोशल मीडिया में दीजिए, जो मीडिया में देना है दीजिए, आप उसको बताइए, उसके बाद हम लोग जो एक्शन लेना होगा लेंगे। इसमें एक्चुअल में जो है गिरी जो ओवरसियर है वो और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उज्जवल बैनर्जी वो मिला हुआ है इसमें, ये लोग कॉन्ट्रैक्टर से मिला हुआ है। ये लोग आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज पंजाबी मोड़ गुरुद्वारा की ओर से रानीगंज में शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर शहीदी दिवस मनाई गई। इस अवसर पर रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से तजेंद्र सिंह ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों की ओर से यह मांग करते हैं कि शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिल रहा, वह उन्हें मिलना चाहिए। उनके परिवार को शहीद का परिवार कहलाने का हक मिलना चाहिए एवं पाठ्यक्रम में शहीद भगत सिंह का इतिहास की जानकारी भी देनी चाहिए एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। पंजाबी मोड़ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सरदार इंदर सिंह ने कहा कि आज जो सवाल इस मंच से उठाया गया है इसका हम लोग समर्थन करते हैं एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। रानीगंज TMC ब्लॉक के अध्यक्ष रुपेश यादव, आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सलाहकार तरसेम सिंह, चेयरमैन हरजीत सिंह, सिख वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अक्षय सुरजीत सिंह मक्कड़, बराकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जोगिंदर सिंह, रानीगंज गुरुद्वारा के अध्यक्ष बलजीत सिंह बग्गा, परवलिया गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार मलकीत सिंह, पाली सिंह, अंडाल गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार हरदेव सिंह, शिक्षक हरिशंकर तिवारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, दया शंकर सिंह, RP खैतान, पार्षद शहजादा खान एवं ज्योति सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे और कार्यक्रम का संचालन रविंद्र सिंह ने किया। जो 28 तारीख को जो प्रोग्राम सरदार भगत सिंह का होता है, विद्यालय भगत सिंह का, ये प्रोग्राम कोई किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, ये पूरा देश के लिए है और पूरी मानव के लिए है। कोई भी कहीं कोई इंग्लैंड में अमेरिका कहीं का कोई भारतीय है, जो भी कंट्री है, एक तो इंसान के लिए, एक इंसान की इंसानियत को बचाने के लिए ये एक उनका संग्रह था जिसमें कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाने की परवाह नहीं की। आजकल क्या है, किसी का कोई थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो लगता है रोने जो मारने का है, लेकिन भगवान सरदार भगत सिंह जी ने अपने बिल्कुल इस चीज़ का सोचा भी नहीं कि मेरे को फांसी लग जाएगी और हंसते हुए फांसी चली। आज तक ये रिकॉर्ड है, ये फांसी चढ़ने के टाइम वो क्या उसका परिवार मुझे रोती है। ये भगत सिंह ने जो मिसाल शहीद आजम भगत सिंह के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है, काफ़ी बातें कही गई है, पर एक बात अवश्य कहना चाहूँगा मैं। मेरे पूर्व वक्ता ने 3 बातें कही है। एक, महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन का दर्जा हमारे देश ने दिया है। क्या भगत सिंह को देश की संतान, भारत की संतान, भारत का लाल, क्या ये दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? मैं उनकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। बहुत सुंदर बात आज उन्होंने उठाई है, मुझे तो पहली बार ये कान में ये बात आई है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि भारत का जो इतिहास है उसमें कई जगह ये लिखा हुआ है, पारित किया जाए कि उनका इतिहास जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में उनकी शहादत, उनके लड़ाई, उनका स्वाधीनता संग्राम का इतिहास सिलेबस में इंक्लूड किया जाए। इन सभी बातों के लिए आप सभी का सहयोग और आप सभी से अमर शहीद भगत सिंह जी की अमर कामना करते हुए
उनको जिंदाबाद ज्ञापन करते हुए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। लालपुर जिला में बंगा जो पाकिस्तान में जो है पड़ता है वहाँ पर हुआ था और उनका पैतृक गांव जो है वो पंजाब में खटकल कलां बोल के गांव है। उनका पैतृक जन्म जो है पैतृक जो है गांव वो जो है खटकल कलां। उनके पिता का नाम किशन सिंह था और माता का नाम विद्यापति था। एवं ये जो है छोटे से ही उनके अंदर में ये जो भावना आई और जो है उनके मन में लोगों के प्रति क्रांति की जो भावना उठी वो जो है 1919 में त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक सिख बिरादरी के द्वारा किया गया था और आप सबके बीच में उपस्थित होकर इस विद्यालय का एक सेवक बनकर मैं महसूस करता हूं कि शायद मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट को प्राप्त किया। जहां बैठे हुए हैं वहां पर मेरी बात का कोई महत्व तो नहीं है और बहुत जल्दी एमएलए साहब भी पहुंचने वाले हैं। कराया ये गलत बात है। विद्यालय का निर्माण आप सबके आशीर्वाद ने कराया। विद्यालय का निर्माण रानीगंज की धरती ने कराया। मैं रानीगंज की धरती को, रानीगंज की बुद्धिजीवियों को, रानीगंज की सभ्यता और संस्कृति को मैं प्रणाम करता हूं। में उनका जन्मदिन है और मैं कम से कम अपने को इस लायक नहीं मानता हूं। वो कोटेशन को मैं आपके सामने रखूंगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि आप मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचार को नहीं। आप याद करिएगा, वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या है, वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या है विचारों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आपके विचारों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आपको स्वतंत्र होकर के काम करने में बाधा पहुंचाई जा रही है। भगत सिंह जी ने कहा था कि आप मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। भाजपा शहर मंडल 1 की ओर से भगत सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पंजाबी मोड़ में स्थापित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा शहर मंडल 1 के अध्यक्ष देवजीत खा, श्री राम सिंह, सुनीता कयाल, शमशेर सिंह, देव कुमार बोस, जय सिंह और उदय सिंह उपस्थित रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह एर बलिदान भूली नी भूलबो ना, भूली नी भूलबो ना। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत मातार वीर पुत्र शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। রানীগঞ্জ বিজেপি রানীগঞ্জ মণ্ডলের পক্ষ থেকে শহীদ ভগৎ সিংয়ের মূর্তিতে মাল্যদান করে আমরা আজকে তার জন্মতিথি পালন করছি এবং আমরা তার আদর্শ থেকে যেভাবে ভারত মাতার জন্য সেবা করেছিলেন আমরা সেই পরিপ্রেক্ষিতে তার আদর্শকে পাথেয় করে আমরা আগামী দিনে পথ চলার জন্য আমরা মানে সেই হিসাবে কি মেসেজ দেবেন কল্যাণচল শিল্পাঞ্চলবাসী? মেসেজ দেওয়ার একটাই কথা, আমরা সবাইকে আমরা এটাই বলবো যে তিনি যে পথ দেখিয়েছেন আমাদেরকে, তিনি তার কর্মজীবনে তার চেতনার মাধ্যমে তিনি যে পথ আমাদের কাছে প্রদর্শন করেছেন আমরা শুধু সেই পথকে পাথেয় করে আগামী দিনে পথ চলতে চাই এবং তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আগামী দিনে প্রতিটি যুব সমাজকে আমরা তার দিকে অঙ্গীকারবদ্ধ করছি যে যাতে আমরা তার দেখানো পথে আগামী দিনে। আপনার নাম পরিচয়? দেবজিৎ খা, প্রেসিডেন্ট রানীগঞ্জ মন্ডল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल आसनसोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में एक संवाददाता सम्मेलन कर IRCTC के आसनसोल और कोलकाता डिवीजन के अधिकारी निखिल सोनार और अमित मित्रा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड देश के 5 ज्योतिर्लिंग का दर्शन पर्यटकों को कराने वाली है, जिसके लिए एक स्पेशल ट्रेन भी खोली जा रही है। जो ट्रेन 6 नंबर को कोलकाता से खुलेगी और दुमका, भागलपुर, जमालपुर होते हुए 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगी, जिसमें उज्जैन, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, त्रिंबकेश्वर, शिरडी, शनि, शिंगनापुर, स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्शन करवाएगी। यह यात्रा 11 रात और 12 दिनों की होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए वह टिकट बुकिंग जैसे अन्य सुविधाओं की जानकारी लेने के लिए 24 घंटे के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।
जो नंबर है 8595904075। साथ ही अगर यात्री ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहती है तो उसके लिए भी अलग सी व्यवस्था है। www.irctcrsm.com इस वेबसाइट से जाकर आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। IRCTC की तरफ से एक ट्रेन हम लोग चला रहे हैं जिसका नाम है स्वदेश दर्शन। जो ट्रेन पहले भारत दर्शन था वही ट्रेन नया रूप लेके स्वदेश दर्शन नाम लेके आया है। इसमें फैसिलिटी भी ज़्यादा है। जैसे ये ट्रेन 6 नवंबर को कोलकाता से खुलेगी। ये ट्रेन दुमका होते हुए बर्धमान होते हुए दुमका होते हुए भागलपुर होते हुए ये ट्रेन यात्रा करेगी पंच ज्योतिर्लिंग के लिए। हम लोग पंच ज्योतिर्लिंग दर्शन कराएंगे। उसके साथ शनि सिंगापुर रहेंगे। उसके साथ हम लोग और एक चीज़ ऐड किया है जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो हम लोगों का बहुत अहम चीज़ लगता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके साथ हम लोग ऐड किया है और कुछ फैसिलिटी हम लोग ऐड किया है जिसमें 2 फैसिलिटी ज़्यादा है। जैसे इसमें इस बार AC कंपार्टमेंट हम लोग लगाया है। पहले हम लोग सिर्फ स्लीपर में कवर करता था, अब हम लोग AC में भी इसका कंपार्टमेंट हम लोग जोड़े हैं क्योंकि ड्यू टू पब्लिक डिमांड AC का ज़रूरत था, इसलिए हम लोग AC लगवाए हैं। जो बंदा AC में बुकिंग करेगा वो लोग AC में जाएगा, AC होटल रहेगा। जो नॉन AC में बुकिंग करेगा वो नॉन AC में, उसका होटल भी नॉन AC मिलेगा। जैसे पहले धर्मशाला एकोमोडेशन था, अभी हम लोग इंडिविजुअल फैमिली वाइज रूम का एकोमोडेशन कर रहे हैं। बाकी ट्रेन में खाना पीना रहना घूमना एक ही पैकेज कॉस्ट के अंदर होगा। हमारे पैकेज कॉस्ट में हम लोग रखे हैं, जो AC में जाएगा वो 33,020 रुपया लगेगा, जो नॉन AC में जाएगा वो 22,010 रुपया लगेगा। इसमें सब कुछ इंक्लूडिंग है, ट्रेन फेयर, एकोमोडेशन, साइट सीन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब कुछ इसमें इंक्लूडिंग है। और एक चीज़ है, इस ट्रेन में पूरा ट्रेन में हम लोग एक सिक्योरिटी गार्ड का अरेंजमेंट किए हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बुज़ुर्ग लोग ही ट्रैवल करते हैं, उसको सामान लेके ज़्यादा भागा दौड़ी ना होने पड़े, इसके लिए हम लोग ट्रेन में सिक्योरिटी गार्ड का अरेंजमेंट किए हैं कि जो बड़े सामान, जो बड़ा लगेज वो लोग लेके आएगा वो ट्रेन में छोड़ के जाएगा, उसको सामान का देखभाल IRCTC की जिम्मेदारी है। बस ट्रेन से उतरने के बाद जो घूमने के जो पॉइंट है, जो बस, वो IRCTC प्रोवाइड करेगा। मतलब A to Z IRCTC प्रोवाइड करेगा, लेकिन हाँ कुछ खर्चा अपने भी है। अपने खर्चा क्या है, जैसे कोई दादाजी पूजा देगा, वो कितने पैसे का पूजा देगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग सिर्फ लाइन में लेके खड़ा कर सकते हैं, लेकिन पूजा देने का बात तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो भगवान को कितना प्रसाद चढ़ाएंगे। तो यही है। और हमारे यहाँ पे 24 आवर्स एक हेल्पलाइन हम लोग रखे हैं, जो 24 घंटा हमारा हेल्पलाइन करेंगे, जिसका वो नंबर भी मैं आप बता देता हूँ, जिस नंबर है 9002040010। ये नंबर 24 आवर्स। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गा पूजा के तहत नगर निगम के 35 नंबर वार्ड रोनाई इलाके में विधायक तापस बैनर्जी के सहयोग से वार्ड पार्षद अख्तरी खातून और मिहान खान के नेतृत्व में रोनाई इलाके के बावरी पाड़ा और मोची पाड़ा की करीब 250 जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी वितरित किया गया। साड़ी पाकर महिलाओं के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों को दिल से धन्यवाद दिया। इस मौके पर अख्तरी खातून, मिहान खान के साथ और भी कई TMC कार्यकर्ता और समर्थकगण मौजूद रहे। उत्सव हमारे 35 नम्बर वार्डे ग्लास फैक्ट्री किछु बाउरी सम्प्रदायर मानुष, मंगलपुरे किछु बाउरी सम्प्रदायर मानुष, ताती सम्प्रदायर मानुष, रोनाइर बाउरी सम्प्रदायर मानुष, ST सम्प्रदायर मानुष बसबास करे, स्थायी बसबासी एरा।
এরা আমাদের এলাকার ভোটার, এরা দিনমজুরি করে লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে জীবনযাপন করে। আমাদের যত ওয়ার্কার আছে আমরা আমাদের এরা নিজেদেরই ঘরের লোক, এরা আমাদের পাড়া প্রতিবেশী। আমাদের যত ওয়ার্কার আছে এদের সুখে দুঃখে আপদে বিপদে যে কোনো মুহূর্তে আমরা আমাদের কর্মীরা সকলেই এদের পাশে থাকে। আমরা যতটুকু সাহায্য পাই, সরকারি সাহায্য, অনুদান যেটা, রিলিফ যেটা, সেটা আমরা এদের মধ্যেও বিতরণ করি। সামনে দুদিন পর শারদীয়া দুর্গা উৎসব, আমরা কর্মীরা নিজেদের সহযোগিতায় নিজেদের উদ্যোগে আমরা কিছু শাড়ি এখানে এনেছি এবং এমএলএ সাহেবও কিছু শাড়ি দিয়েছেন। তাই আমরা সকলে মিলে চাইছি যে এদেরকে দুর্গা উৎসব উপলক্ষে একটা ছোট্ট উপহার দেওয়ার জন্য আমরা আজকে এই আয়োজন করেছি, সকলে একত্রিত হয়েছি। আমরা চাই যে দুর্গা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। लगातार साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अस्थायी कर्मचारी आसनसोल जुबली मोड़ डिपो पर धरना प्रदर्शन एवं कर्म विरोधी पालन कर रहे थे, लेकिन बुधवार के दिन यह चालक एवं कर्मचारियों ने फिर से सामान्य तरीके से कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन ने उनकी कुछ मांगे मान ली हैं और बाकी पर विचार चल रहा है। ऐसा आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने सामान्य कार्य फिर से शुरू कर दिया। आज के गाड़ी ने सबाई जाच्छे सब डिपो स्टार्ट ডিআরডব্লিউ হোক, ট্রাভেলস হোক, যে হোক, সবাই চালু। আমাদের আর কোনো ইয়ে নেই, গাড়িগুলো সব চলছে অল ডিপো। আর কিছু সেটা আপনারা তুলে নিলেন মানে কি আপনাদের ইয়ে মিটে গেছে? হ্যাঁ মিটে গেছে। একটা আমাদের সে পরিবহন মন্ত্রী বললো কি আমি এখন বলছি, হ্যাঁ আমরা কথাটা বলছি ওটাই শুনুন, হ্যাঁ তারপরে লিখিত পরে দিব বা পূজার পরে একবার বসবো। তো সেখানে লিখিত আর দরকার নেই, যখন পরিবহন মন্ত্রী যখন বলছে তখন মিডিয়াও শুনছে, আমরাও শুনছি, সবাই শুনছে, তো আমরা মেনে নিলাম। ঠিক আছে, তাহলে চালু করলাম আজকে। আর পরে পূজার পরে বললো পরিবহন মন্ত্রী বসে বললো একটা আলোচনা করবো, দেখলাম বা তোমাদের কী করতে হবে সেটা আলোচনা কিছু করবো। বা আপনাদের সবাই যোগ দিয়েছে? হ্যাঁ সবাই যোগ দিয়েছে। কতজন মোটামুটি এখানে আছে? এখানে আমরা 115-20 জন আছি। আপনার নাম? गुरुचरण सिंह। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा मोड़ ब्रिज के नीचे टैक्सी और वाहन स्टैंड में स्थानीय लोगों ने हंगामा मचाया और वाहन में तोड़फोड़ भी की। तत्काल अंडाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाने के कारण बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। स्थानीय लोगों और प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने बताया कि दोपहर 1 बजे के लगभग काजोड़ा मोड़ रेल लाइन पार करने के दौरान गुड्डू तांती की ट्रेन की ठोकर हो जाने के कारण गंभीर रूप से उसे चोटें आई, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाने के लिए काजोड़ा मोड़ स्टैंड के पास लाई। वहां कोई भी वाहन चालक ने अस्पताल ले जाने के लिए नहीं राजी हुए। कुछ देर के बाद एक मिनी हाथी ट्रक के सहयोग से दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के साथ ही युवक की मौत हो गई। चिकित्सकों ने अस्पताल पहुंचने में देरी को मौत का कारण बताया, जिसके कारण लोगों ने वाहन स्टैंड को यहां से हटाने की मांग की है। उन लोगों ने एक मरते युवक की जान बचाने के लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाया और आज उस युवक की मौत हो गई। क्या हुआ, घटना क्या हुआ था? पहले रुपया चाहिए, पहले आदमी के इमरजेंसी नहीं बचाएगा, गाड़ी का हटाएगा यहाँ से। कोई नहीं लगा, नहीं लगा कोई। यहाँ से किस लिए आप लोग का गाड़ी है? किस लिए है? किस लिए गरीब आदमी की मदद नहीं करता? वोट वाला का मदद चाहिए। और जो गरीब रहेगा तो पड़ा रहेगा, नहीं देखेगा। अपना अपना दरवाजा पर लगाइए। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।